people of the word in this वचन के place. भूखे लोग हैं यहाँ पर. Amen. Okay. So सबसे जरूरी परमेश्वर के राज्य में जब आप उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक सबसे जरूरी चीज जो है वो है जो इमेज या जो छवि परमेश्वर की आपके पास है. The foremost important thing in the kingdom when you walk with the Lord is the image of God that is in you, that is with you. Amen. क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी मानूं परमेश्वर के बारे में, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं है. Because many people think no matter what I believe about God, it's not going to impact my life, but it is not so. जो आप परमेश्वर के बारे में मानते हो वो बहुत जरूरी है. What you believe about God is very significant, very important. और आपके जीवन में जो भी फल हैं वो उससे निर्भर करते हैं. And whatever fruits you will have in your life will depend on it. यद्यपि परमेश्वर के पास अनंत सामर्थ है, Even though God has limitless power, उसका कोई माप नहीं. there is no measure of it. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गों के स्वर्ग भी उस परमेश्वर उसमें नहीं समा सकता. परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समा सकता. The word of God says even heavens of heavens cannot contain him. और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के लिए that in him dwells the fullness of Godhead bodily. And for Jesus, his word says कि उसकी देह में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है. ठीक है, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वचन कह रहा है The word is ये saying, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो सारे नक्षत्र सब कुछ है, इस सब में भी परमेश्वर की भरपूरी नहीं समा सकती. all of cosmos, all the planets, even all of these things cannot contain the fullness of God. वो इतना महान है He is so mighty that even this entire universe it cannot contain the fullness of God. कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की संपूर्णता को नहीं समझ क्योंकि सकती. उसका वचन कहता है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की हथेली में है. Because the word says that the entire creation, the entire universe is in the palm of his hands. हाँ, तो अगर आपके हथेली में आप घुस सकते हो? पूरा नहीं जा सकते. Can you get inside your palm? No, you cannot. सो इस पूरी सृष्टि, परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है कि ये पूरी सृष्टि में भी परमेश्वर की भरपूरी समा नहीं सकती. God is so great, so mighty that the entire creation cannot contain him. मगर मसीह में बाइबल कहती है परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी. But the Bible says in Christ dwelt the fullness of Godhead bodily. यानी जब मसीह पृथ्वी पे चल रहा था, जब यीशु पृथ्वी में चल रहा था, उसके अंदर वो महान परमेश्वर की पूरी संपूर्णता थी. So when Jesus was walking on the earth, in him dwelt the fullness of that mighty God. और फिर भी Even then, बाइबल कहती है The Bible जब says, वो अपने शहर गया तो बड़े बड़े काम ना कर सका. even then the Bible says when he went to his own town, he could not do many क्यों? mighty miracles. क्योंकि उसके शहर के लोगों ने कहा अरे ये यूसुफ बड़ाई का बेटा नहीं है. Because the people of his city, they said, isn't he the son of Joseph the carpenter? अरे इसके तो भाई बहनों सबको बचपन से जानते हैं. We know his brothers and sisters from ये बड़ा childhood. प्रचारक बन गया आज. Oh, he's trying to become a preacher nowadays. और सोचो And imagine, उस यीशु के अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी. जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है फिर भी उन लोगों के लिए ना कर सका क्योंकि उनकी छवि खराब थी. in the Jesus in whom dwelt the fullness of Godhead bodily, he could not do many mighty miracles for those people because they had a wrong image in them. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपकी छवि जो परमेश्वर की है वो रीति रिवाज की शिक्षाओं से नहीं मगर परमेश्वर के जीवित वचन से आए. Therefore, it is so important that the image of God in your heart should not come from teachings of tradition and religion, but from the Word of God. ओके
बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया. Bible says when God made Adam, he made him in his own image and likeness. और आदम ने जब पाप किया And when Adam sinned, तो क्या हुआ? what happened? परमेश्वर की जो छवि थी वो खराब हो गई. The image of God was distorted. अब आदम सोच रहा है Now Adam is thinking, ये छोड़ेगा नहीं मुझे, God, he will not spare me. भागो इससे. Run. 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्चून सोया तेल केवल 109 में, 159 पर अब हमें क्या देगा? क्या देगा? दंड देगा, पनिशमेंट देगा. Why? Because they think now God will punish us. यही आदम भी सोच रहा है. This is what Adam was also thinking. सो पाप का रिएक्शन एडम में क्या था? एडम इज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम गॉड. So what was the reaction of sin in Adam? आदम परमेश्वर से दूर भाग रहा था पाप के एंड कारण. व्हाट इज गॉड डूइंग? परमेश्वर क्या कर रहा है? गॉड इज रनिंग आफ्टर एडम. परमेश्वर आदम के पीछे पीछे भाग रहा है. जब आदम ने पाप भी कर दिया, परमेश्वर ने आदम को छोड़ा नहीं. मैं आज कई लोगों से बात कर रहा हूं, चाहे कुछ भी गलती करी है, आपका स्वर्गीय पिता आपको छोड़ने वाला नहीं है, यीशु के नाम में. Even when Adam had sinned, God did not leave him. And I'm talking to many people today, no matter what mistake you have made, your heavenly Father is not going to leave you. याद रखना, जब तक आखिरी सांस है ना, Remember, till your last breath, तब तक वो आपका पीछा करता रहेगा अपनी पूरी सामर्थ्य से. till you have the last breath in your lungs, he will keep on pursuing you with all of his might. आदम को लग रहा है ये मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए भाग रहा है. Adam is thinking, God is running after me to kill me. अरे वो तो उसका नंगापन ढांपने के लिए भाग रहा था उसके No, पीछे. he was running after him to hide his nakedness. क्या मारा परमेश्वर ने जब आदम के पास गया? Did God beat Adam when he went to him? Did he kill him? उसका नंगापन ढाका. No, he covered his nakedness. आज भी वही करना चाह रहे हैं. Even today, he's trying to do आपकी the same शर्म thing. को, आपकी पराजय को, आपकी हर एक गलत बात को वो अपने लहू से ढांपना चाहता है. Your shame, your defeat, every wrong thing in your life, he's trying to cover it with his own blood. इसीलिए बहुत जरूरी है सुसमाचार को पहचानो. सुसमाचार क्या है? अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे दंड मिलेगा. अरे ये तो हर धर्म सिखाता है. This is why it is so important you understand what the gospel really is. If you do good, you get good. You do bad, you get punishment. This is what every religion is teaching. यही तो सुसमाचार है कि जिस दंड के योग्य हम थे, परमेश्वर ने स्वयं वो दंड अपने ऊपर ले लिया. But this is what the gospel is, that the punishment that we deserved, God took that punishment upon himself. Amen. इसीलिए याद रखना So remember, कि आप उस परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हो, वो बहुत 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 जरूरी है. what you think about God is very, very, very important. कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए. मैं मार्टियर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो शहीद हो गए. वो तो लिखा है, कुछ लोगों का नंबर है. मगर वो जो गलत शिक्षाओं की वजह से, गलत चीजों को बिलीव करके समय से पहले चले गए. So many people died before their time. I'm not talking about martyrs. There's a number for that. I'm not talking about that. But so many believers died before their time, believing wrong teachings in their life. जो नहीं मानते कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करता है, और ये मानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ को 10 साल, कुछ को 15 साल, कुछ को 30 साल, कुछ को 40 साल परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, वो समय से पहले चले जाते. Those who do not believe that God has given us a long life, but those who believe that some live 10, God has given some 10, some 20, some 40, they go before their time. खुद सोचो, अगर परमेश्वर ने किसी को, बच्चे को रखा था 4 साल में चला जाएगा, किसी को रखा था 8 साल में चला जाएगा, 14 साल में, 15 में, 30 में, 22 में, आप हर रोज सुन रहे हो लोग मर रहे हैं आपके चारों ओर, तो फिर क्यों वो अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा? If it was God who had kept, some would live 4, 8, 15, 20, whatever.
Why would God then say in His word that I will satisfy you with a long life? अगर परमेश्वर ने एक एज पहले से नियुक्त करी है और वो एज बदल नहीं सकती, तो क्यों बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे हों? If God had kept a specific age, a specific number for a man to live, then why does the Bible say, honor your mother and father so that you may have longer life on the earth? यानी आदर अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, आपका जीवन के दिन लंबे कर सकता है. So that means honoring your mother and father, honoring your elders, your spiritual leaders can extend your days of life. अगर आदर हमारे दिनों को लंबा कर सकता है, तो निरादर हमारे दिनों को काट सकता है. If honor can extend or elongate our life, dishonor can cut short our life. और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं. And today I'll tell you a secret. लंबा जीने का, To live a long life, एक ब्लेस्ड लाइफ जीने का. to live a blessed life. Exodus 23, I think it's 23, 26. Nirgaman 23. उसमें लिखा है, You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sicknesses away from the midst of you. No one will suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा और मैं तेरे खाने और पानी पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा. तुम्हारे बीच में कोई भी बांझ ना होगी और मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा. ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. I'll ask क्या you a question. आप उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? Are you serving the Lord your God? क्योंकि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट कई लोगों के दिमाग में क्या है, अरे मैं प्रचार, मैं फुल टाइम में नहीं हूं. अरे जो भी कर रहे हो फुल टाइम सेवा में हो आप भी. Because there's a wrong conception in many people's mind. Oh, I'm not a preacher, I'm not a full-time servant of God. No, whatever you're doing, you're a full-time servant of God. हाँ, ये वचन आप सबके लिए है. This word is for all of you. अगर परमेश्वर की सेवा करोगे, If you will serve Him, आपके अन्न और पानी में आशीष है. if you will serve God, there is blessing on your food and वो water. आपके बीच में से सारी बीमारियों को निकाल देगा. He will remove sicknesses आपके from your midst. परिवार में कोई बांझ ना होगी. There will be no और barren in your house. परमेश्वर आपके दिनों को पूरा करेगा. And the Lord will fulfill the number of your days. अब सवाल ये आता है, उस परमेश्वर की सेवा कौन करता है? Now the question is, who serves God? बहुत आसान जवाब है. The answer is very उस easy. परमेश्वर की सेवा वो करता है जो उसकी सेवा करना चाहता है. Anyone who wants to serve God serves God. जो टाइटल का वेट करते हैं वो खुदा की सेवा कभी नहीं करते. Those who wait for a title, they never serve God. जो कहते हैं पास्टर पहले पूरे चर्च के सामने बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूं, तब मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, तो तू बैठ चुपचाप. Those who say, Pastor, first say before the entire church, I'm an evangelist, then I'll go preach the gospel. To them, sit down. टाइटल बाद में आता है, The title comes much later. दिल पहले जाहिर होता है. The heart is shown first. जो टाइटल के लिए सेवा करता है, प्रभु कहता है तू बैठ जा साइड में. Those who serve for the title, the Lord says, go sit. मैंने आपको क्या बोला था? टाइटल लोगो की तरह है. लोगो, कार का लोगो. जब पूरी कार बन जाती है, मर्सिडीज का लोगो आखिरी में लगता है, टाक, ये मर्सिडीज गाड़ी है. I told you the title is like the logo of a car. When the entire car is assembled, then at the end they put that logo on it. उस खुदा की सेवा करते रहो. मैं क्या सेवा करूं? जो कर सकते हो, जो तुम्हारा हाथ ढूंढ सकता है करने के लिए, पूरे हृदय से उस खुदा की सेवा करो. Keep on serving the Lord your God. How can I serve Him? Whatever your hand finds to serve Him with, do it. With all your heart, do it. उसका वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा. His word says, he who is faithful in little will also be faithful in much. जब मैंने नया जन्म पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, मुझे थोड़ा पता था कि आगे मैं सेवा करूंगा, पर एक चीज पता थी कि मतलब सेवा करनी है. फुल टाइम मिनिस्ट्री का कोई डिजायर नहीं है.
When I was born again, when I received salvation, I knew one thing, that I have to serve God all my life. I never thought about full-time नौकरी, ministry. वहां पे मुझे पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री, ये तीनों उस ऑफिस में काम करते रहे। मैं जहां था, कैफेटेरिया में हो, बैठ के कॉलिंग कर रहा हूं, जहां हो मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है, बाइबल कहती है। जब खुदा का प्रेम दिल में भरा हुआ होगा तो मुंह से भी वही निकलेगा। The first office where I was, I met the senior leadership there, and every time, everywhere I was, I would be preaching the gospel, because when the love of God is filled in your heart, that's what will come out of your mouth. एक भी ऑफिस ऐसा नहीं था जहां खुदा ने मुझे भेजा जहां मैंने सुसमाचार प्रचार ना किया हो अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को। Not even one office was such where the Lord sent me and I did not preach the gospel to my friends, to my colleagues. आज कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं हमें मिशन ट्रिप में जाना है, मलेशिया, इंडोनेशिया। अबे पहले ऑफिस में तो बता किसी को यीशु के बारे में। मलेशिया, इंडोनेशिया भी जाना, पहले जहां हो वहां विश्वास योग्य रहो, वहां गवाह बनो यीशु का। बाइबल कहती है कि तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर देशों के कोने कोने में। Today many people, they say, oh, I want to go to a mission trip to Indonesia, Malaysia. No, wherever you are in your office, first preach the gospel there. The Bible says first in Jerusalem, then in Judea, then in Samaria, and then the ends of the earth. कई लोगों को देशों में जाना है यीशु का प्रचार करने के लिए, ऑफिस में किसी को नहीं पता वो मसीह में। Many people want to go to nations to preach the gospel on mission trips, but nobody in their office knows they're even a believer. मैं जहां जाता यीशु के बारे में बताने लगा। Wherever I would go, I would tell about कोई Jesus. एजेंडा थोड़ा था, मुझे पास्टर के पास थोड़ा जाना था कि पास्टर जी मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, या मुझे कोई टाइटल दे दो, या मुझे कोई पोजीशन दे दो। नहीं भाई, I had no agenda or to go to the pastor and say, give me the title of evangelist. No. बाइबल कहती है कुछ को अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट बुलाया, मगर सबको गवाह बनने के लिए बुलाया, सबको। The Bible says some are called to be apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, but all are called to be his witnesses. और अगर गवाह गवाही ना दे तो क्या फायदा ऐसे गवाह का? बेकार गवाह है वो। And if the witness does not do witnessing, he is a useless witness. आमेन। आप जहां हो वो आपका मिशन फील्ड है। Wherever you are, that is your mission field. मत बोलो दूसरे देशों में भेज प्रभु, Don't say, Lord, send me to different nations. पहले मुझे टाइटल दो। First, give me a title. आप जानते हो, आप कभी किसी को नहीं बताते वो कौन है, लोग आपको बताते हैं वो कौन है अपने कामों के द्वारा। You know, you never tell someone who they are, but people tell you who they are by their works. आमेन। प्रभु ने उनको कभी नहीं ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया। I know those people who That's why sin is deadly and we should not live in sin. who have left Jesus. They have openly denied Jesus and now they have gone back to things. यीशु ने कभी उनको नहीं ठुकराया, उन्होंने यीशु को ठुकराया। पिता का घर हमेशा खुला था उड़ाऊ पुत्र का, वो उड़ाऊ पुत्र है जो घर से दूर चला गया। The father's house was always open for the prodigal son. It was the prodigal son who left the father's house and मगर went away. अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो तो याद रखो, वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। But if you are thinking about God, always remember that He will never ever deny you. मेरे बच्चे हैं, एलियाना, अमाया, जूडा, जब वो घर आते हैं मैं दरवाजा क्यों खोलता हूं? मुझे एक बात बताओ, क्यों घर का दरवाजा खोला? पहले मैं ये देखता हूं, अच्छा इन्होंने कितना सही जीवन जिया, अगर नहीं जिया तो दरवाजा क्यों खुलता है? दरवाजा मेरे घर का क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। My children, when they come back home, what do I see before opening the door? Do I see what kind of life they live? No, because they are my children, the door of my house is open for them. और सोचो एक बच्चा आ गया मेरे घर पे, उसके बाल ऐसे बन रखे हैं तेल लगा के, और बोले पापा मेरे 99.99% आए। Imagine a child comes knocking at my door and he's very well cladded and says, I scored 99.99% in मैं school. बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ पापा, मुझे घर ले लो। तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अरे कौन है भाई, किसका बच्चा, मैं नहीं जानता इसको। And the child says, I'm a very good child, Papa take me home. I will say, I don't know this. क्योंकि वो मुझसे उत्पन्न नहीं हुआ। जब यीशु बोल रहे कुंवारियों में मैं तुम्हें नहीं जानता, वो धार्मिक लोग हैं जो यीशु से उत्पन्न नहीं हुए, वो धर्म में हैं। When Jesus tells that parable where he tells
that those he denied, saying, I don't know you, are the people that are not born from him. चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूं। मुझे लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो गॉस्पेल को। आप सुसमाचार समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? वरना पूरी जिंदगी स्वर्ग और नरक में निकालेंगे, पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, स्वर्ग और नरक। Otherwise, entire life you'll keep wondering about heaven or hell. You'll आप not even कहेंगे think about यीशु the ने कहा Father. बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जाता। यीशु ने कभी कहा ही नहीं पूरी बाइबल में। Jesus said, no one will go to heaven without me. See? Jesus never धर्म said ने this. क्या किया? पिता को ही हटा दिया, स्वर्ग डाल दिया पिता की जगह में। Religion, यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। हमने पिता को बोला पिता आप साइड हो जाओ, स्वर्ग रखो यहाँ पे। religion has क्योंकि removed. पूरे दिमाग में क्या है? स्वर्ग 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 स्वर्ग। अरे स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि पिता वहां है, इसलिए स्वर्ग है। The heaven is heaven because the Father is there. यीशु ने नहीं कहा स्वर्ग में जाना अनंत जीवन है, यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। Jesus did not say going to heaven is eternal life. He said knowing the Father is eternal life. आमीन। तो सिटीजनशिप कहां की है आपकी? हाँ, तो अगर सिटीजन हो तो वीजा का वेट क्यों कर रहे हो? So if you are a citizen, why are you waiting for a visa? सिटीजन हो भाई। You are a citizen. To be absent from the body is to be present in the presence of Lord. जिस दिन अपनी आंखें करी यहाँ बंद, वहां पिता की उपस्थिति में अपनी आंखें खोलोगे आप। शरीर में अनुपस्थित होने का अर्थ है परमेश्वर के सामने उपस्थित होना. When the day you close your eyes here, you will open your eyes before the Father. सी ऐसा दूसरे धर्मों में है। इस्लाम में वो बोलते हैं टिल द डे ऑफ दियामा, यानी डे ऑफ जजमेंट, हमें नहीं पता कि अल्लाह हमें जन्नत में डालेगा या जहन्नुम में डालेगा, नहीं पता। सो दे आर, पूरी जिंदगी वो काम करेंगे मगर अंत तक उनको नहीं पता कि वो कहां जाएंगे। मसीह में ऐसा नहीं है। This is in other religions. In Islam, they say till the day of Qiyamah, the day of judgment, we do not know whether Allah will send us to heaven or to hell. But this is not so in Christ. ऐसा मसीह में नहीं है। It is not so in Christ. इसीलिए सारी मसीहों की पूरी जद्दोजहद किस पे है कि भैया कुछ भी करके स्वर्ग मिल जाए। So all the believers, they are fighting, they are trying that no matter what we do, we should get to heaven somehow. तो पूरा सेंट्रल फिगर क्या है? The central figure स्वर्ग। is heaven. इसीलिए पिता कहाँ है? पिता साइड में। So where is the Father? On the side somewhere. मगर जब आपको पता लग गया कि मैं स्वर्ग से आऊंगा और पिता के पास जाऊंगा, अब आपका पूरा ध्यान कहाँ है? पिता को प्रेम करने में, Now when you know पिता you को have, जानने में। when you know you have come from the Father and you will go back to the Father, now all of your awareness is to know the Father and to love Him. कुछ स्क्रिप्चर आपको बता देता हूँ कि आप चलो आपको थोड़ा समझ में आए, आप बोलो। यीशु की तो बात मानते हो आप? Do you believe Jesus? मैं आज भी हैरान हूं, इतने सारे मसीह So many believers. एक स्क्रिप्चर लेंगे विच इज अ पैराबल एंड दे विल मेक एन एंटायर डॉक्ट्रिन आउट ऑफ इट। They will take one scripture which is a parable और पूरी doctrine बना देंगे उसमें से. कुंवारी स्त्री कुंवारी स्त्री कुंवारी स्त्री, यीशु मना कर देगा हमें। The words is the word Jesus will deny us. ओके, बहुत प्यार मिलने वाला है मुझे इसके बाद, पर ये प्यार पाने के लिए ही खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। God has anointed me for such love. पहला यूहन्ना 5:13 देखो क्या लिखा है। इफ यू विल ओनली रीड एंड बिलीव द वर्ड, ठीक है, केवल अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाएंगे, जो लिखा है वो मान लेंगे बस, ठीक है? मान सकते हैं? क्या खुदा का वचन है? क्या यीशु झूठ बोलता है? नो। अब देखो क्या लिखा है। These things I have written to you, अपोस्टल जॉन कह रहा है, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God. किसके लिए लिख रहा है वो? कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? तो आपके लिए लिख रहा है वो, ठीक है? देखो क्या लिखा है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? It is saying to those who know the name of the Son of God, that you may know that eternal life is yours. That you may know that you have eternal life. Not that you will have someday, you have eternal life right now. ये नहीं कि किसी दिन मिलेगा अनंत जीवन, बल्कि ये कि आपके पास अनंत जीवन है।
वो तो ठीक है पास्टर, मगर कुंवारी स्त्री, Oh, that is okay, Pastor, but what about the virgins? तो भर लो तेल भाई, क्यों डर रहे हो जिंदगी भर? Fill the oil, then why are you afraid all your life? आओ ऑल नाइट प्रेयर में। Come for the all-night prayer. कब तक इस डर में जियोगे कि खुदा आपको इनकार कर देगा? How long will you live in this fear that God will deny you one day? कितने लोग यहां पर हैं, अगर आपके बच्चे ने कभी गलत किया, आप उन्हें इनकार कर दोगे? मैं गुस्सा होने की बात नहीं कर रहा, इनकार मतलब आप सबके सामने बोल दो ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं, किसके कौन है? How many people here would say, I don't even know this child. Whose child is this? When it's your own child who's done something wrong. पड़ोसी कहेंगे भैया आपका तो बच्चा, मैं तो जानता ही नहीं है The कौन है। neighbors will say, this is your son. अरे आपकी शक्ल मिली है, मैं जानता ही नहीं Your कौन face matches. I don't even know who he is. है। As is the heavenly man, so are those who are heavenly. अरे शक्ल मिलती है हमारी भाई, कैसे इनकार कर सकता है हमारा? Amen. जैसा वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही हम भी हैं. Our face matches his face. How can नहीं he deny? इनकार कर सकता। He cannot deny us. धर्म आपको बताता है खुदा तुम्हारा इनकार कर दिया अगर भागे नहीं ट्रेडमिल में और तेज। Religion tells you that God will deny you if you don't run on my treadmill faster. Religion is like running on a treadmill with as fast as you can and reaching nowhere. धर्म ऐसा है जैसे ट्रेडमिल पे जितना तेज हो सके भागना, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है. Do you know when you believe that God will deny you, how many scriptures are you violating or rejecting? क्या आप जानते हैं अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा इनकार कर देगा, तो आप कितने सारे वचनों को ठुकरा रहे हो, इनकार कर रहे हो. जब आप अभी अपने सोल में, अपने प्राण में असिद्ध हो, अगर आप असिद्ध अपने प्राण में होकर कभी अपने बच्चों का इनकार नहीं कर सकते, तो कैसा वो परमेश्वर जो प्रेम है, जिससे हम उत्पन्न हुए, हमारी तरफ देखकर कह सकता है मैं इसको कभी नहीं जानता. When we being imperfect can never deny our children who are born out of us, how can God who is perfect ever deny the children that are born from him? You don't have to live all your life trying to gain approval of your father. You are already accepted in the beloved, Bible says. आपको जिंदगी भर ये मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपका स्वर्गीय पिता आपको ग्रहण कर ले. बाइबल कहती है उसने पहले ही आपको ग्रहण कर लिया उस प्रिय में. सोचो एक पत्नी और पति के बारे में, ठीक है? अभी Think about a husband and wife. हम जा रहे हैं पास्टर जी, आप तो कुंवारी स्त्री के बारे में नहीं बता रहे हो. सुसमाचार को जानो. Know the gospel. बाइबल में पौलुस ने पता है कहा, शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि सुसमाचार का ज्योतिर्मय प्रकाश उनके ऊपर ना चमके. The devil has blinded the eyes of people that the glorious light of the gospel would not shine on them. ओके, अब सोचो एक पति और पत्नी हैं, और पत्नी को यह डर है कि कभी भी मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा और मुझे डिवोर्स दे देगा, मुझे इनकार कर देगा. Imagine a husband and wife, and the wife has this fear that my husband will deny me any day and divorce me and kick me out of the अब house. मुझे एक बात बताओ, कैसा रिश्ता होगा उनका? Now tell me, what kind of a relationship will they have? She will live in fear and paranoia. वो डर में हमेशा भयभीत होकर जिएगी. जैसे मसीह लोग जब कोई बोलता है यीशु आने वाला है, How believers act when someone says Jesus is coming back. बस वही रिएक्शन होगा उस पत्नी का भी. That's how that wife will also react. अरे अगर तुम्हारा प्रेमी है तो डर क्यों रहे हो? अगर वापस आने वाला है, तुम्हारे लिए कोई तो लेने आ रहा है तुमको. If it is your lover who is coming back, why are you so afraid? Because he's coming to take you. If you hear a message that Jesus is about to come back and you get afraid, you have not understood the gospel. अगर आप जब ये संदेश सुनते हो कि यीशु वापस आ रहा है और आपको डर लगता है, तो इसका अर्थ है अभी तक आपको सुसमाचार नहीं पता, आपने समझा नहीं है. अब सोचो वो पत्नी पूरे जीवन क्या करी है, अरे मैं कैसे मनाऊं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें. Now imagine- तो कभी भी वो असली में अपने पति को प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरी जिंदगी वो अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रही है कि ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे. If all her life she's trying to please him that he doesn't kick me out of the house, she will never be able to truly love him. कितने मसीह ऐसे हैं जो पिता से प्यार नहीं करते, पूरी जिंदगी वो सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद कैसे भी करके स्वर्ग चले जाएं.
So many believers, they don't love the Father. They're just trying to protect that seed that somehow after they die, they should get a place in heaven. वो उस बड़े भाई की तरह है, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया और जब पिता ने दिल खोलकर उसके लिए पार्टी करी तो बुरा मान गया और बोला, मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा करी, विश्वासियों की तरह, मुझे तो तूने एक बकरी भी नहीं दी. It's like that elder son when he came back and when the prodigal came back and the father kept a party for him in the house. This elder son was so angry. I served you all my life. You never gave me a calf. और पिता ने कहा, मेरे बेटे, ओ मेरे बड़े मूर्ख बेटे. And the father said, ये oh, पिता ने my नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं. मूर्ख तो था वो. elder fool son. तो पिता ने कहा, हे मेरे बेटे, He said, my son, जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है. कमा क्यों रहा है? कमाने की कोशिश क्यों कर रहा है स्वर्ग को? Whatever- जो मेरा है वो तेरा ही तो है. the father said, whatever is mine is already yours. Why are you trying to earn heaven? It is already yours. अब जब आपको पता लग जाएगा मैं स्वर्ग से आया तो स्वर्ग जा रहा हूं, तो अब रेस स्वर्ग जाने की नहीं है, अब रेस पिता को जानने की है. Now when you know you have come from heaven and you are going to heaven, now the race is not to go to heaven. The race is to know the Father. अब मैं उसकी अब मैं पवित्र जियो कि नरक न चला. अब मैं पवित्र इसलिए नहीं जी रहा कि नरक न चला जाऊं. अब मैं पवित्र इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मेरा पिता पवित्र है. Now I am not forced to live in holiness that I don't go to hell, but I live in holiness because my Father is holy. अब मेरे जीने का जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरा दर्शन है, वो बदल चुका है. अब वो हेल को अवॉइड करना नहीं है, अब वो पिता के साथ घनिष्ठ संबंध से उसको जानना है. My perspective has changed. It is not avoiding hell, but it is knowing the Father deeply. हेल है ही नहीं भाई तुम्हारे लिए. Hell is not even for you. होता तो लिखता नहीं पौलुस. If it was, Paul would have written it. यीशु ने कहा, देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और नरक की और मृत्यु अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास है. Jesus said, I was dead, but now I am alive and alive forevermore, and I have the keys to Hades and death. क्या मैं आज ये कह रहा हूं अब हमें पवित्र जीवन नहीं जीना? क्या हम सारे गलत काम करें? नहीं, मैं कह रहा हूं अब हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया है. अब हमारा सही जीना स्वर्ग में अपनी जगह फिक्स करने के बारे में नहीं है. अब हमारा सही जीना इसलिए है क्योंकि मैं बस परमेश्वर से जन्मा हूं. Am I saying that we should not live a holy life? We can do whatever. No, I'm saying now we're not trying to live holy so we have a place in heaven. We are living a holy life because we are like our Father and we want to know Him. May the favor of Father locate you today in Jesus' name. परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में. Amen. उसका वचन, यीशु ने कहा, पिता सच्चे आराधकों को तलाश रहा है. सच्चे आराधक कौन है? जो पिता को तलाश रहे हैं. His word says the Father is looking for true worshippers. Who are true worshippers? Those who are looking for the Father. पिता तलाश रहे हैं उनको. The Father is looking for them. कोई मुझे तो जाने. Let someone know me. हाँ, सोचो आज अगर एक, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो इसलिए शादी करे, अरे दूसरे बड़े का बहुत बड़ा बंगला है, बड़ा 10 बेडरूम. Imagine if someone gets married to someone because they have a तो हम huge नहीं house. कर रहे, हम भी तो यही कर रहे हैं. Aren't we अरे doing the वहाँ same सोने thing? की सड़कें हैं. Oh, there's golden streets in heaven. No. नहीं. हमारा असली धन स्वयं परमेश्वर है. Our true treasure is God Himself. सोने की सड़कें स्वर्ग को स्वर्ग नहीं बनाती. The roads of gold don't make it heaven. पिता वहां पर है, वो स्वर्ग को स्वर्ग The बनाता है. Father is there and that's what make it heaven. Amen.